Good evening to all present here. Myself Anuj Shukla from Mechanical Engineering Department, and I welcome you all in today's session on National Education Policy. Today we are going to have a very informative and much needed session by a well-known resource person in this field, Professor S.P. Pandey sir, who is a Pro-Vice Chancellor of COER Roorkee University, which is formerly known as University of Engineering and Technology. So before we start the session, I would like to take a little time to share a brief introduction of our speaker, sir. Professor S.P. Pandey sir holds BTech in Mechanical Engineering from KNIT Sultanpur and Master of Technology in Automobile Engineering from Madan Mohan Malviya Engineering College and the degree of PhD from Madan Mohan Malviya University of Technology. Sir is a Margdarshak of AICTE and expert member of National Board of Accreditation for Tier 1 and Tier 2 institutions under Washington Accord. In addition, Professor S.P. Pandey sir is an expert of AICTE for new educational policy on theme Reinvigorate the Human Capital by Excellence in Education. He is an expert of outcome-based education. Sir has more than 30-year experience of teaching, research, and academic administration. Has been a member of working executive and different professional bodies such as Institution of Engineers, ISTE, IAENG, and many more. Now I request our speaker, sir, to if we can start the session. I'll just go through this one. Sorry for these interruptions because of some maybe due to signal issue, maybe that. But the sixth pillar we will discuss directly in budget. ये 6 तरह के बजट आप देखें, इसमें 6 पिलर्स थे. हम इसमें सीधे बात करेंगे री इनोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसको कि हमें ऑफिशियली मुझको डॉक्टर प्रेमदत्त जी बड़े सीनियर प्रोफेसर और रुड़की डायरेक्टर थे आईटी के, उनको 2 लोगों को दिया हुआ है और हमने अटल के तहत इस पे ये हमारा टॉपिक है, तो हम री इनोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल पे बात करेंगे. ये आप देखें, ये स्लाइड में 2021 इट शोज दिस स्लाइड शोज वन वेरी यू कैन से वेरी clear and beautiful concept. Growing tree on the coins reflect the concept of growing business, as well as it increases the money strength, as well as it store and increase the money value also. The slide indicates that yes, plants on the particular coins is the indicative of the business growth. Now coming to the NEP side, there is a proposal of Higher Education of India as an umbrella body having 4 separate vehicles. And what are those separate vehicles? Standard setting, accreditation, regulation and funding. आप ये आने वाले समय में ये पाएंगे और सबको मिला के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव है जो अभी पास नहीं हुआ है. इसके तहत 4 ही सेटअप चलेंगी. पहले नंबर पे स्टैंडर्ड सेटिंग रहेगा, एक्रेडिटेशन मैंडेटरी रहेगा, जिसमें कि एनबीए और नेट ये 2 चीज लेके चल रहे हैं. इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है. एनआईआरएफ नहीं इसमें शामिल है क्योंकि एनआईआरएफ जो है एक्रेडिटेशन नहीं करता, वो रैंकिंग करता है. रेगुलेशंस गवर्नमेंट का, ये हायर एजुकेशन का फॉर्म होगा, फंडिंग गवर्नमेंट देगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट आई मीन टू से अबाउट ह्यूमन कैपिटल. यू कैन सी दिस स्लाइड दैट the economic value of any worker experience and skill is called human capital. Whatever the capital, अगर आप बात किया जाए 2 तरह के हैं. ह्यूमन कैपिटल में आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो स्किल है, आपका नॉलेज है, जिसको आप अटेन करते हैं और पूरी जिंदगी उसके अनुसार आप अपने को परफॉर्म करते हैं. यू मेक्स द प्रोडक्टिव योर ओन पर्सनालिटी एज वेल एज यू are responsible to give the better production for the organization where you work. तो कितना बड़ा ये टेंजिबल एसेट ऐसा है जो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखता है. किसी भी कंपनी के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बैलेंस शीट पे ये ह्यूमन कैपिटल दिखता नहीं है. इसीलिए ये नेशनल गवर्नमेंट, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टर्म को लिया कि ह्यूमन कैपिटल को रीइनोग्रेट करना. रीइनोग्रेट का मैं लिटरल मीनिंग आपको पहले बताऊं कि टू स्ट्रेंथन अगेन और टू मेक स्ट्रेंथन और टू इनर्जाइज अगेन. पहले की सब चीजें हैं, बस उसको फिर से ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसको फिर से स्ट्रेंथ देना है और री इनोग्रेट मतलब कि फिर से उसको इनर्जाइज करना है. एंड द इकोनॉमिक वैल्यू हो गया. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर एक्सपीरियंस एंड स्किल. ये बहुत से लोगों को आश्चर्य भी होता है कि ये ह्यूमन कैपिटल वर्ड क्या है. बड़ा क्लियर मैं आपको बता दूं, ये जो आप नॉलेज के साथ आते हैं,
आप फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज ज्वाइन करते हैं, उसमें आपके स्किल के ऊपर कॉलेज खर्च करती है, आपको सेमिनार, आपके बहुत से चीज़ों में डे टू डे एवरी ईयर सेमेस्टर में जो खर्च होगा उससे आपका उसका भी वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर आपकी जो स्किल होती है जिससे अपने को अपडेट करते हैं उसमें भी इन्वेस्ट होती है। ये सब मिला के हम ह्यूमन बीइंग होके आते हैं समाज में, और आगे जब हम किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हम ही ह्यूमन बीइंग से हम ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। ये अंतर बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाट मेक्स अप द ह्यूमन कैपिटल? माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Okay, what makes up human capital? This slide you can see very clearly it says, आपसे पूछा जाता है या बात किया जाता है भाई ह्यूमन कैपिटल क्या क्या बनाता है। आप देखें, it is from education and training, hard and soft skill, health, work experience, personality, loyalty to company. This is the most important one. And intelligence and emotional intelligence better up. Loyalty to the company and hard skill, education, training, work experience, everything is having equal importance, and this all together makes a person as a human capital, or you can say term that this is a human capital where it involves all the monetary activities, investment, which is an expenditure, and because of that a person becomes a high level of human capital. बिकॉज मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी स्किल नहीं है या स्किल कम है या हेल्थ इशू आ रहा है, फ्रिक्वेंटली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा पा रहा है, कोई भी कम काम कर पा रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी पे सीधा असर पड़ता है। कंपनी हो या इंस्टीट्यूशन हो, सीधा सीधा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस बात से सहमत होंगे कि these all are the factors which are responsible to increase the productivity, or you can say enhance the financial and productivity, all the things are related interrelated. अब नॉलेज इकोनॉमी की बात हम लोग करते हैं तो ये सब में ये कंट्रीब्यूट करता है। Now other slide says that human capital, again you can see in this form, these 3-4 persons have got their own knowledge, they have got abilities inbuilt, no doubt, with their own interest of learning, skills उन्होंने सीखा है, एजुकेशन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, कि जो चारों फैक्टर्स हैं ये इनके अंदर इनबिल्ट है। इस सब चीजों के साथ जब वो किसी जगह काम करते हैं तो इनके अंदर क्रिएटिविटी बनती है, विजडम इनका बढ़ता है, और इनके अंदर जजमेंटल पावर होता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें उन्होंने करोड़ों रुपए से बजट फिक्स किया है। तो आपको हमको जानना भी है कि ह्यूमन कैपिटल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारी यूनिवर्सिटी या हमारा संस्थान कैसे अफेक्ट होगा। आप देखें नंबर 1 पॉइंट पे, एवरी कंपनी इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉय से, और नो डाउट स्टूडेंट स्टेक होल्डर है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल हु मेकअप ए कंपनी वर्कफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर। अमूमन जितने भी कंपनी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सक्सेस और दूसरा फैक्टर के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। दूसरा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल कैसे अफेक्ट करता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज पीपल हु आर मोर एजुकेटेड, मोर डेवलप्ड स्किल एंड मोर वर्क एक्सपीरियंस, इट विल बी एबल टू अकम्प्लिश मच मोर। क्लियर है, यदि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा स्किल्ड होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बेटर अचीव करेगी। तीसरा पॉइंट है हायर ह्यूमन कैपिटल मींस एम्प्लॉइज आर मोर कैपेबल ऑफ डूइंग देयर जॉब। डेफिनेटली, क्योंकि आप हायर कैपिटल का मतलब ही हो गया ह्यूमन कैपिटल के, उसकी वो सब 5-6 फैक्टर उसके अंदर काफी इनबिल्ट है, काफी उन्होंने अपने उस लेवल को, हर चीज चाहे वो हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल हो, चाहे इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ये सब चीजें उसके अंदर काफी अच्छे डिग्री की इनबिल्ट है, तो डेफिनेटली वो सब पड़ता है। एंड बट ऑल्सो इट मीन्स दैट दे कैन इनोवेट एंड दे कैन फाइंड क्रिएटिव वेज टू सॉल्व ए क्राइसिस।
इतना ही नहीं है, वो उनके अंदर कैपेसिटी भी होती है, वो इनोवेट भी करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम इसकी क्राइसिस को सॉल्व भी करते हैं। अगला पॉइंट है, दे विल आल्सो बी एबल टू डू देयर जॉब मोर एफिशिएंटली इफ दे आर हैविंग हायर ह्यूमन कैपिटल। यदि हायर ह्यूमन कैपिटल है तो स्वाभाविक है एफिशिएंटली होगी एक्सपीरियंस। और उसका नेक्स्ट पॉइंट देखें, because they probably have more experience doing the job, but they can also achieve efficiently because of their rich life experience, and this experience gives them wider perspective of their problems, क्योंकि वो उससे पीछे से प्रॉब्लम देख के आते हैं और जितना रिच एक्सपीरियंस होता है उतना बेटर परफॉर्मेंस नेचुरली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप इन माइंड दैट ह्यूमन कैपिटल कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कंपनियों के साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि कंपनीज में जो ह्यूमन कैपिटल है, a human being has been converted into human capital with all input, whatever skill training, development aspect, training programs. But there is always there is issue that migration from one place to another. Companies that don't do what it takes to retain human capital can experience a brain drain. हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, वो यही होता है कि एक कंपनी से हमने सारी चीजें इनपुट ली, वी आर ए गुड ह्यूमन कैपिटल, एंड फॉर नो रीजन और फॉर सम रीजन और स्मॉल रीजन शिफ्टिंग टू अनदर कंपनी। ब्रेन ड्रेन डिस्क्राइब्स द फिनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन ह्यूमन कैपिटल माइग्रेट्स फ्रॉम डेवलपिंग एरियाज टू अर्बन एंड डेवलप्ड एरिया। इसको भी आप बड़े क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, there is no issue. We should know what is these new word. This is not a new word. Basically, we all teacher have to also communicate to the student also. So that way, I will request Dr. Jahid that I will send PPT, and it can be sent to the student group. And this recording, this particular Zoom meeting, whatever I am delivering, you can also replay, and when students have got some gathering or you are having some slack time during your examination and all, so it is always available, and many other YouTube lectures are there, so you can also listen to those. And you can also lose human capital if you don't have advancement opportunities, and 30% employees leave their job due to lack of career advancement according to some survey. Now, apni next point है how to increase human capital. We have to also ensure that increase in human capital is essential. So we should know the way. That first is improve education for your workplace. A highly educated workforce will be capable of achieving more. You can provide training related to your industry. You can also sponsor employees to get college degrees or additional certification. Leading companies also make sure that providing ample opportunities of learning and professional development within the work itself. That might mean giving more decision-making authority, enabling people to pursue side initiatives, or pairing people with others they can learn from one collaborative project. All of these options will prepare them to take on more advanced role in your organization. Second way है इसको बढ़ाने का, people can always learn more. A company that invests in its employee continued learning will keep growing its human capital without having to change anything. यहाँ पे मैं 2 मिनट आपको एक समय लूँगा. Today morning I was giving a lecture for the student on design thinking. ये सभी ने सुना होगा, आजकल सबसे ज़्यादा ये वर्ड डिजाइन थिंकिंग पूरे हायर एजुकेशन में सबको हिट कर रहा है. एनईपी में चूंकि ये लिखा हुआ है कि डिजाइन थिंकिंग को आप अपने इलेक्टिव की तरह इस्तेमाल करिए, आपकी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में भी होगा या नहीं तो हो जाएगा. डिजाइन थिंकिंग बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि इट इज वन लाइन वाज देयर दैट इन 2030 व्हाट टाइप ऑफ नेचर और जॉब विल बी देयर. 80% job is not sure that which type of skill they will be in the need. मतलब 2030 में 80% जॉब का स्किल रिक्वायरमेंट अभी तक क्लियर नहीं है. Nobody knows because जिस स्पीड से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तेजी से हो रहा है, यह श्योर नहीं है कि 70 से 75%, 80% तक का उस समय का जॉब क्या होगा. So that is also a challenge, and for the क्योंकि देखिए 21st century इस समय चल रहा है, and we know that skill in 21st century is a little bit different. And in previous lecture, I think I said 4 C were there. That is creative thinking, collaboration, communication, and curriculum.
तो ये एक श्योर है, हमें एज ए टीचर तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है। देखिए आज के दिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आप देखें तो लोग बुला रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट हो तो जॉब देने के लिए, लेकिन अगर ये 10 साल या 15 साल पहले आइडिया होता कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डिमांड है, आज हमारा एआई में भी कई हैं, इतने ओपन सोर्सेज हैं, आप 100 ओपन सोर्सेज हैं ओपन एआई में, तो इतने प्लेटफॉर्म का अगर रिक्वायरमेंट होता तो हमारे बच्चे स्टूडेंट 10 साल 12 साल 13 साल पहले तैयार होते। तो दैट इज आल्सो चैलेंज फॉर अस। सो एनईपी हैज कवर्ड a lot of things, so we have to be very careful. Second point, to increase the human capital to provide a work culture that encourages creativity. Yes, work culture dimension is very much necessary, and definitely enhance the each and everything that they can think out of box and have better potential to solve problem in new ways. Third point, last year, divide labor into specialized areas. To definitely divide the expertise manforce so that to get the maximum output. Now here you see this slide that investment in human capital yields best result. You can see these 4 gentlemen who are here. The downside coins represent that investment. You can see the slide, it says that investment in the human capital is best result. Higher the investment in the human capital, meaning by higher the investment in the different part of the human capital, which I have shown in the previous slides, definitely it will yield the best result in its output. Now, this slide you see, आप ये जानना चाहेंगे एनईपी की तो बात हुई, लेकिन 1 साल में इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये गवर्नमेंट ने अपना 1 ईयर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था पार्लियामेंट में, क्योंकि ये बात सही है कि एनईपी के बारे में 2020 हुआ, 2023 चल रहा है, तो गवर्नमेंट को ये भी बताना पड़ेगा 1 साल में एनईपी पे क्या काम हुआ। तो हम सब लोग को ये जानना चाहिए कि क्या चेंज हुआ। पहला देखिए, टेक्निकल कोर्सेज इन रिलीजन लैंग्वेज। इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे कि टेक्निकल कोर्सेज को रिलीजन लैंग्वेज में परमिट करके इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। देयर आर 6 लैंग्वेजेस विच आर बीइंग रन इन द टेक्निकल कोर्सेज: हिंदी, Bengali, Marathi, Telugu, Tamil, only 5. So only these 5 languages are there which are being implemented in the different states, where even AICTE approved courses are being taught in Hindi, Bengali, Tamil. Achievement क्या हुआ? Only online degree programs. UGC have implemented online program that is very well recognized through the online learning board. Even your IGNOU programs have been officially announced it is valid. Third, board exam pattern tweaked. Tweaked का हिंदी मतलब होता है ट्विस्ट, थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना। बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा उन्होंने उसको मॉडिफाई छोड़ रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो आप रेगुलर स्टडी के दौरान ऑनलाइन ज्वाइन करके उसकी सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट उसके बारे में लेते हैं। आपने कोई एक रेगुलर बीटेक का बच्चा कोर्स कर रहा है, साथ में उसने ऑनलाइन एक ऐसा कोर्स, मान लीजिए स्पोर्ट का या म्यूजिक कुछ भी उसने चुना है 1 साल का, और साथ में उसको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तो इसको एलकार्टा सब्जेक्ट बोलते हैं। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। लास्ट में इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट में 1 साल में लिखा है इन्होंने डाटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी इन स्कूल्स। यस, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट एंड इट इज इन द इंडिया डिफरेंट पार्ट आर गेटिंग दिस एडवांटेज। एंड व्हाट इज द इन द पाइपलाइन, यू कैन सी क्रेडिट ट्रांसफर टू बी अवेलेबल। अभी क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी नहीं है, जिसके तहत आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या जनरली सर्कुलर में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपके एकेडयू भी करती है, कोई भी यूजीसी के भी सर्कुलर में एकेडमिक, अभी वो चीज़ फंक्शनल नहीं हुई है जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट लखनऊ का है, वो वहाँ से छोड़ के आपके यहाँ आना चाहता है सेकेंड ईयर में ही, तो उसको वहाँ पे कोई यहाँ से एनओसी आया, वहाँ से सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। जो उसकी क्रेडिट सेकेंड ईयर में वहाँ रही है वो यहाँ आपके यहाँ उतनी स्टोर इसके बैंक क्रेडिट का है, उसके थ्रू आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई थर्ड ईयर में बच्चा वहाँ से शिफ्ट करना चाहता है आपके यहाँ, वो आराम से आ जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस क्रेडिट ट्रांसफर जिसको कि एकेडमिक बैंक ऑफ के तहत ही होगा, वो ये है कि पहले क्या होता था, बच्चे को कॉलेज छोड़ना पड़ता था, पूरी फीस बेकार होती थी,
अब ऐसा नहीं है। बच्चा अगर थर्ड ईयर में भी आ रहा है, फोर्थ सेमेस्टर लास्ट में, सेवेंथ भी छोड़ के अगर 8वें में आपके पास आना चाहता है, तो आपको 8वें सेमेस्टर की या 1 साल की फीस देगा और उसका पूरा क्रेडिट जो भी उसका अर्न किया हुआ है वो उसका आपके यहाँ आएगा, डिग्री आपके कॉलेज से मिल जाएगी और ज्वाइंटली लिखा रहेगा कि थर्ड ईयर वहां तक। सेकेंड इनका पाइपलाइन में है फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट। वो ये है, जैसे इसमें भी सेम एग्जाम्पल है, कोई बच्चा ऐसा है कि गाजियाबाद से उसका पेरेंट्स का ट्रांसफर फॉर एग्जांपल अलीगढ़ हो जाता है, वो यहाँ से आराम से एग्जिट करेगा, वहाँ के किसी कॉलेज में एंट्री लेगा और फिर 2 साल बाद फिर वापस ट्रांसफर हो जाता है, 1 साल बाद फिर वापस उसी में आ जाएगा और ऊपर का जो क्रेडिट ट्रांसफर उसकी के तहत उस बैंक में इनका क्रेडिट डिपॉजिट हो जाएगा और उसको नुकसान नहीं होगा। अभी एक इशू था कि बंद होना है, जिसके लिए लिखा हुआ है एमफिल टू बी डिसकंटिन्यू। फिर सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, मैंने पहली स्लाइड में देखा है, आपको हायर काउंसिल ऑफ इंडिया CI बोलते हैं। वो अभी इसमें दिक्कत क्या है कि सिटी यूजीसी नर्सिंग काउंसिल बी फार्मा का अलग उनकी रेगुलेटरी MCI अलग है, तो इनमें करीब 11 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वी वांट टू रन इंडिपेंडेंट, इसलिए अभी वो HCCI वाला हायर काउंसिल एजुकेशन इंडिया अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। सिंगल पेपर तक ये कर दिया। Now see the key takeaways. Human capital is an intangible asset not listed on a company balance sheet and includes things like employees, experience, and skill. And second, relevancy, since all labors are not considered equal, employers can improve human capital investing in the training, education, तो think at education benefits जो दे सकते हैं, इसके तहत वो आप ह्यूमन कैपिटल इज परसीव्ड टू हैव रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ, हम नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी है और इसी पे बढ़ेगी जब हम ह्यूमन कैपिटल को देखते रहेंगे कि इसको एडॉन स्किल भी इम्प्रूव करना है। लाइक इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जो चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज, इसको आपको मतलब यू हैव टू पिक अप द स्पीड ऑफ whatever the change, we as a guide has to cope the technological advancements. Now, other key takeaways: investment in education converts human being into human capital. They represent enhanced labor productivity. इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमारे कोई भी एक्टिविटी से हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेदर इट इज इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, व्हाटएवर इट मे बी, हमारे हर चीजों से, हमारे हर एक्शन से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो वी हैव टू फोकस इन दैट वे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन आर सोर्स ऑफ द कैपिटल। अगर आपको इंफॉर्मेशन, आपको आपके सिचुएशन में पता करना है कि कितना ह्यूमन कैपिटल आपके यहाँ सोर्स है, तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर जो आपके यहाँ जो भी होते हैं वो सब चीजें अलग कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट एंड ग्रोथ एनहांसिंग, एंड इट इज द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल ऑफ द ह्यूमन वेल। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अगर बीमार रहेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। इसका एसेंस ब्रीफ में आप देख लें, क्योंकि टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश एट 5 o'clock। पहला एसेंस आपको एक क्लियर पता होना चाहिए। आजकल डिस्कशन में बहुत होता है व्हाट यू मीन बाय, यूनिवर्सिटी से भी लेटर आते हैं, यूजीसी से, व्हाट एक्टिविटीज यू हैव डन। तो मैं डॉक्टर जाहिर से कहूंगा कि कभी भी लेटर आता है कि व्हाट प्रोग्राम ऑफ एनईपी यू हैव डन, दिस इज द अवेयरनेस प्रोग्राम, सच टाइप ऑफ प्रोग्राम यू शुड लिस्ट इट। एसेंस में देखें स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सब लोग जानते होंगे कि इट हैज इंट्रोड्यूस रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट बाय 5+3+3 सिस्टम। Second, it introduced the multidisciplinary system. Third is empathize conceptual understanding.
फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सब लोगों को इस पॉइंट पर बहुत ही सीरियस रहना है कि जितनी टेक्नोलॉजी में जितने हमें सॉफ्टवेयर आ जाए, नॉलेज आ जाए, अच्छा है। हमें खुद अगर हमने सीखा नहीं तो सीखने में कोई नुकसान नहीं है। आप पाइथन खुद सीख सकते हैं, अगर सिविल के हैं तो भी, मैकेनिकल के हैं तो भी, फिजिक्स के हैं तो भी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये सब आवश्यक है। मैं इसी को बात कर रहा था। ये जब डिजाइन थिंकिंग का मैं लेक्चर कभी आगे दूंगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में स्टूडेंट और अमूमन कहा जाए स्किल की रिक्वायरमेंट है, यही इसी को कहते हैं। फिर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होनी है। कॉन्टेक्स्ट टू मल्टीलिंगुइज्म, इंक्लूजन इन करिकुलम पेडागोजी। For example, multilingualism means we have got so many states have got different languages. We should see that all things should be technical things should be in their own respective languages. Here, sense another sense is equity and inclusion in higher education. Equity का मतलब होता है transparent and you can say very fair induction in the higher education of any process of implementation of the programs. Inclusion means it should give a message, the belongingness of the persons has to be introduced. Research, innovation and ranking, integrated higher education system. Integrated higher education का सिस्टम का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, KIPM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या दिल्ली के किसी भी, अगर आगे चलकर NSIT के साथ या DTU के साथ आप कोई MTech प्रोग्राम या PhD का कोरिलेशन करना चाहेंगे कुछ, तो ये सब चीजें उसमें आप पढ़ेंगे, ये सब मिलेगा। दैट facilities, but that system should allow governance and regulation, promotion of Indian language, arts and culture. अब imperative का मतलब लिटरल हिंदी मतलब होता है कि immediate attention और you can say indication। अब आप देखें ये पॉइंट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेटिंग यूनिट, मल्टी डायमेंशनल चेंज, इतनी तेजी से चेंज हो रही चीजें, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हम स्पीड आज कर रहा था, कल वो चैट जीपीटी था, आज गीगा चैट आ गया। अब कुछ समय बाद चैट जीपीटी लोग भूल जाएंगे और गीगा चैट पीछे हो जाएगा। बस अभी उसमें एक इशू आ रहा है कि रशियन लैंग्वेज में है और मल्टी ने दूसरे देशों की अभी वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस दिन आएगा तो चैट जीपीटी बंद करके गीगा चैट आएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्रिसाइज है। शिफ्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया है। वर्ल्ड विदाउट फियर, रिवॉल्यूशन इन आईसीटी। लास्ट लिखा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हायर एजुकेशन सिस्टम मस्ट ट्रांसलेट दीज चैलेंजेस टू ए क्वालिटी रिस्पॉन्स। हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न हमारे सारे पूरे इंडियन सिस्टम में ये होता है कि हम लो एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में हमेशा सीरियस भी रहते हैं। वी हैव टू सी व्हाई इट हैपेंस एंड व्हाई इट कैन बी नॉट रिड्यूस्ड। It is a serious issue, demographic disaster rather than dividend. This makes a crucial issue and center focus on technical judge institution on employability rather than placement. हमारा पर्पज इसमें इंस्टीट्यूशंस का ये होता है कि हम उनको एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट के नाम से जज करना चाहिए हमें, rather than हम कोई ये कह साहब हमारा 90% प्लेसमेंट है। That is not a, you can say, best criteria. We should say yes, this institute has got a enhancement of employability, making the student employable. On that basis, we should get. Now, in our higher education in the country, we had observed typical results, a typical defect. ये आप सब सहमत भी होंगे। पहला आता है कि delays in evaluation and preparation of result. For example, आपकी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी KTU है, evaluation दिसंबर में अगर है, अभी रिजल्ट आना है, मेरे ख्याल से कल परसों बात हो रही थी, आज बात हो रही थी, तो ये हुआ कि रिजल्ट जल्दी निकालना है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। और क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट नहीं होगा, अनाउंस नहीं होगा, बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं वो जॉब पे कैसे ज्वाइन करेंगे, दूसरा अगला सेशन कैसे शुरू होगा, बच्चों की क्लियरिटी नहीं है कि उनके पूरे पास हैं, ऑल क्लियर हैं, हाउ मेनी बैक पेपर दे आर हैविंग। एनीवे, अनबैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, behavior of teacher within and outside classroom. ये हम लोगों को as a teacher we have to very alert on this. We are a role model. Our behavior should be a decent behavior. We should be same in the classroom and outside the classroom, walking in the campus also. And then teachers inability to understand the student psychology and learning curve. मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, स्टूडेंट अगर आपके साथ हैं तो हमारी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट की साइकोलॉजी और लर्निंग कर्व अलग होती है, वो हमें ही पहचानना है। अगर हमने लो लर्नर स्टूडेंट को पहचान लिया है तो उसको हमें
अलग से टैकल करना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारी प्रॉब्लम पूरे देश में अभी जनरल है कि टीचर्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते और लर्निंग कर्व भी नहीं समझ पाते कि हु आर द ब्राइट लर्नर, स्लो लर्नर, उनको कर्व को कहाँ पर, ये इट इज अ वेरी इन डेप्थ सब्जेक्ट। Inefficient administrative process leading to mistakes in students' admission, registration, record keeping, collection of fees, generation of result. एक लड़के का नाम गलत से, मान लीजिए फादर का नाम गलत हो गया, एक के चक्कर लगाते रह जाएगा, उसका फाइनली डिग्री हो जाएगा, कहीं इंटरव्यू जाएगा, मान लीजिए एयरफोर्स के इंटरव्यू गया तो कहेंगे नहीं सब आपका ये जाओ ठीक करा के आओ। सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो जब एक में आप जाएंगे वहाँ कहेंगे साहब कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस से ये लिस्ट है, ये देखो नाम के मिस्टेक का, लड़के ने गलत भरा, किसी ने चेक नहीं किया। So these issues are there, which is a typical defect. Inefficient laboratory management, inadequate maintenance of building and infrastructure. And our quality program is not working. This is the general slide which is applicable for the country, and it has been basically given to many universities in the different part of state. And we are it is taking in general. So lack of shared mental model of quality in organization. Shared mental model जैसे कोई बहुत अच्छा VIT Vellore ले लीजिए, उनके कुछ अच्छे मॉडल हैं। Why it cannot be shown to the different states? Implement, it can be implemented. मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। Lack of shared values and vision, compliance rather than commitment. हमें कमिटमेंट पूरा नहीं करना है, कंप्लायंस एक्चुअली हम लोगों को करना चाहिए। कोई चीज है उसका कंप्लायंस किया तो वी विल गेट सक्सेस। स्टील रेनफोर्स कंक्रीट सिलोस का मतलब होता है जैसे आपके अगर 5 स्कूल हैं, 7 स्कूल हैं, आपस में वो बात ही नहीं करते। MBA इंजीनियरिंग में नहीं आएगा, इंजीनियरिंग फार्मेसी में नहीं जाएगा, फार्मेसी साइंसेज में नहीं आता। अगर गलती से साइंसेज है तो वो मैकेनिकल के HOD से नहीं बैठेगा, बात करेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से। इसमें क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से ना कुछ ना शेयर कर रहे हैं, ना एक दूसरे की अच्छाई देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्वालिटी प्रोग्राम को सही ढंग से बढ़ने नहीं दे रहा है। कि नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच टू इम्प्लीमेंटेशन, कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट होनी है। नेक्स्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर विद इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप स्किल। ये तो नेचुरल है कि अगर लीडरशिप स्किल होती है तो चीजें उसी लाइन में प्रॉपर चलने लगती हैं। इनएबिलिटी टू लर्न कलेक्टिवली, हम एक साथ सामूहिक रूप से लर्न करने की जो एबिलिटी होती है उसको हमें फिर से रीलर्न करना है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्यू फैक्टर्स अदर देन दैट, मैनेजमेंट कमिटमेंट, फैकल्टी क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इंटरेक्शन। देखिए बहुत कम इंडस्ट्री इंटरेक्शन लोग करना चाहते हैं, थोड़ी इसमें समस्याएं तो होती हैं, लेकिन अगर हम लीड करते हैं तो जरूर जाते हैं। हम छोटी इंडस्ट्री से शुरू करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी फोकस होना है। स्टूडेंट क्वालिटी पे भी ध्यान रखना पड़ता है। ये अफेक्ट करते हैं सारे एकेडमिक प्रोसेसेस है। एकेडमिक प्रोसेसेस का मतलब है कि हमारे सारी चीजें एज ए टीचर हमें लेसन प्लान बनाना है, फिर अगर स्लाइड बनाना है आपकी स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में, इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद करंट इन्फॉर्मेशन। जितना भी आप एकेडमिक्स में ए से जेड हो सकता है सब इसमें शामिल है। फिर फैकल्टी की ट्रेनिंग होनी है। आज के दिन तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन कहीं किसी को जाना नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है और रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत ही नॉमिनल हो रहा है। गवर्नमेंट NITTR आपने किया भी हुआ है और NITTR से लोग आप कोर्सेज कर भी रहे, दैट इज MOOCs कोर्सेज आर दे ऑल आर देयर इन पार्ट ऑफ दैट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लाइब्रेरी सोर्सेज। नाउ प्री रिक्विजिट ऑफ क्वालिटी, बेसिक रिक्विजिट क्या होती है? आप लोग जब PO बनाते हैं, कोर्स फाइल बनाते हैं या सब्जेक्ट का, तो आप प्री रिक्विजिट ऑफ हर सब्जेक्ट लिखते हैं। आप सब टीचरों ने बनाया हुआ हिसाब। मटेरियल साइंस अगर सब्जेक्ट है तो इसकी प्री रिक्विजिट क्या है, मैथमेटिक्स है तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो क्वालिटी हमने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका प्री रिक्विजिट होता क्या है। अब आप देखें, इन ऑर्डर टू एबल टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, आवर एजुकेशन सिस्टम हैज टू हैव फॉलोइंग। पहला, क्वालिटी सिलेबस, क्योंकि क्वालिटी सिलेबस में आपका कंटेंट क्वालिटी वाला होना ही चाहिए। आज के दिन डिमांड कुछ है, सिलेबस पुराना है, तो क्वालिटी कहाँ रह गई? बच्चे को तो फेस करना है लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट कंटेंट उसको फेस करना है। So it is our responsibility to have quality syllabus. For that, university has to implement for each and every branch or any course. Then quality faculty. Faculty induct after the training, after induction, faculty improves, no doubt, and quality it is a continuous process. Faculty can improve in a better and better way. Then quality teaching and evaluation. Our teaching should be very quality oriented.
whatever we teach, मैं आपको बताऊं, अच्छा टीचर पढ़ाता है, बच्चे अपने आप बैठते हैं। अगर अच्छा टीचर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो बच्चे क्लास में नहीं आते। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन से आप जो बोलते हैं क्लास में, बच्चा ऑलरेडी मोबाइल से देख चुका है, आप सही बता रहे हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी क्लास की 10-15 लेवल ऊपर होनी चाहिए आज के बच्चों से, अन्यथा दे विल से कि सर ने तो गलत पढ़ाया। क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी करेक्टर। अब आप देखें, जो प्री रिक्विजिट हमने बात की क्वालिटी फैकल्टी की, ये पूरे भारतवर्ष में सभी में ये इशू आती रहती है। एकेडमिक एंड रिसर्च इमिनेंस उस आदमी का होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी दिखनी चाहिए, ही शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ, और उसकी जो टीचिंग है उसकी रिफ्लेक्टिव कैरेक्टर ऑफ टीचिंग एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी नॉट नंबर, इट इज मोस्ट परहैप्स वाइज। सबसे चिंताजनक बात क्या है कि पूरे सिस्टम में क्वालिटी की शॉर्टेज है, नंबर की नहीं शॉर्टेज, इसलिए ये चिंता का एक विषय है। आगे आपने देखा स्लाइड को, प्री रिक्विजिट ऑफ क्वालिटी में क्वालिटी टीचिंग एंड इवोल्यूशन में टीचर स्टूडेंट रेशियो, मॉडल ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव कैरेक्टर, इनोवेटिव टीचिंग मेथड, ये सब आप लोग जानते भी हैं। रेगुलेटरी ऑफ द क्लासेस, यूज ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस स्टेट में असेसमेंट, फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो पहले नंबर पे आ रहा है, क्वालिटी कैरेक्टर। हम एज ए टीचर, हमारा कैरेक्टर क्वालिटी कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। वी हैव टू बी सेंसिबल इनफ, वी हैव टू बी हैव आवर ओन इंटीग्रिटी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस और टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर्स, मीन्स इट इंक्लूड्स पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, योर एम्प्लॉयर, your regulatory authorities, whether it is a UGC, AICTE, or whatever rules, circulars they all are issuing, we have to comply. Doing relevant engineering, electronics professors should be very well equipped with all latest information of 5G और 6G। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 5G की जगह 6G की बात करने लगे हैं लोग कि रिसर्च होगा उसमें, ये चीज़ 5G से डिफरेंट हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। एंड एजुकेशन सिस्टम इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रूविंग। ये हम जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम से हमारी लाइफ इंप्रूव होती है, इसीलिए हम एजुकेशन के लिए बोला जाता है कि बैकबोन ऑफ द कंट्री होती है। अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कोई बहुत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इम्बैलेंसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम देखें, हम आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं और हाथ देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें समस्या है, तो हमारा नर्स ना दबा के कहता है कि साहब वो ये दोष है, वो दोष है, 10 तरह के दोष बताता है। वो क्या होता है, वो इम्बैलेंस बोलते हैं उसको। तो किसी भी चीज का इम्बैलेंस, उसको ठीक करने के लिए वो दवा दे देता है, हम लोग उसमें लेके चले जाते हैं। तो किसी भी चीज का इम्बैलेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें हम देखें पॉइंट 1 पे लिखा है, क्वालिटी ऑफ एनी सिस्टम इज पॉसिबल ओनली बाय स्ट्राइकिंग ऑप्टिमम बैलेंस अमंग वेरियस डिमांड ऑफ एनी सिस्टम। सेम इज ट्रू फॉर हायर एजुकेशन। An analysis of education scenario in the country reveals the following type of imbalances which are bound to affect the health of technical education। हमने दिया है, यहाँ पे देखें, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस मतलब अगर हमारे पास, यहाँ मैं उत्तराखंड में इस समय हूँ तो मेरे पास उत्तराखंड के बच्चे मिलेंगे, गोरखपुर है तो गोरखपुर की मेजॉरिटी स्टूडेंट है, महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु में चले जाइए, उनके मेजॉरिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते जाते रहते थे। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी इम्बैलेंस, ये मैंने आपको बताया है, क्वालिटी और क्वांटिटी का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस इन द फील्ड ऑफ स्टडीज, अभी इस समय कंप्यूटर, आईटी, एमसीए गाड़ी के अगले सीट पर बैठी है, बाकी दूसरी ब्रांचें थोड़ी सी सेकंड सीट पे। कुछ समय बाद ये होता है, ये सीट आगे पीछे होती रहती है। ये बैलेंस हमेशा बना रहता है, पहले से बनी है चीजें। 2-3 साल बाद जनरल है, परसेप्शन है, 2 से 3 साल लगेगा, ये सारी चीजें फिर से रिवाइव होंगी, लेकिन इनका फॉर्म थोड़ा अलग होगा, सब में कंप्यूटर इंटीग्रेट करेगा। नाउ इम्बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आपको बताना चाहूंगा, ये होते हैं जो टीचर्स होते हैं बेसिकली, जो या स्टाफ होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो वो सबके बीच, इनके बीच में बैलेंस होना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग, क्लासरूम, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है। इम्बैलेंस इन ग्रेजुएट एंड वोकेशनल एजुकेशन, आपने देखा होगा यूजीसी ने नई शिक्षा नीति में वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत डाले हैं। इम्बैलेंस इन ट्रेनिंग प्रोसेस, ये भी एक इम्बैलेंस है। क्वालिटी रिसर्च की बात करते हैं तो
एविडेंस ऑफ जो भी रिसर्च है उसका ब्रेकिंग ग्राउंड का एविडेंस होना चाहिए, पीयर रिकग्निशन होना चाहिए, उसका पब्लिकेशन, पेटेंट, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, नो हाउ, जनरेटिंग ए न्यू पैराडिग्म एंड अवार्ड एंड रिकग्निशन भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये एक मॉडल है जो आईआईटी के लोगों ने बनाया था। इसमें इन्होंने 9 वेरिएबल लिया था, इनेबलर हम लोग बोलते हैं इसको, और आईआईटी के तमाम प्रोफेसरों ने इसको 3-4 साल पहले इंप्लीमेंट करके और इसको सर्वे किया इन्होंने। हम आपको इस पर बहुत समय नहीं लेना चाहते, लेकिन ये इनेबलर बड़े इंटरेस्टिंग है। इनेबलर का एक आगे जो सीट है वो से आप ज्यादा समझेंगे। इस इनेबलर को आप देखें, इनेबलर राइट से लेफ्ट साइड दिखा है, इसमें इनको मार्क्स मिला हुआ आर स्क्वायर्ड है, रेंज इनका, हमारा कंसर्न सिर्फ रैंक प्रायोरिटी है, व्हाट शुड बी, और इनका स्कोर 5 पॉइंट पे है, और रैंक प्रायोरिटी व्हाट शुड बी। बेसिकली जो सर्वे हुआ आईआईटी के डायरेक्टर्स ने किया उसमें ये था कि हमारा प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो तीसरे कॉलम में और 5वें में लास्ट। हमारा सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे बात कर लेते हैं शॉर्ट में। क्वालिटी ऑफ फैकल्टी में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट नॉर्मली इन कंट्री इन जनरल फिफ्थ प्रायोरिटी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इट शुड बी सेकंड एंड एक्चुअल प्रायोरिटी इज एट्थ प्रायोरिटी। लीडरशिप रोल थर्ड, everywhere in the country, southern, eastern, northern, where it is this one. Quality of admission, it is maintained on the same line, fourth होना चाहिए, fourth पे है। Alumni relations 5वें पे होना चाहिए। We focus, but a lot of more effort is needed. If physical infrastructure, तो it should be 6, but normally it is found that it is always on first. Collaboration में आप देखें, ठीक है, 7वें पे होनी चाहिए, 6ठे पे है। स्पोर्ट एक्टिविटीज में 8वें पे इसकी मेरिट होनी चाहिए, रैंक प्रायोरिटी, लेकिन तीसरे नंबर पे। कल्चरल में 9th पे होनी चाहिए, लेकिन इन जनरल पूरे कंट्री में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट हो, आप अखबार पढ़ते हो, अब तो गवर्नमेंट में भी इसको गवर्नमेंट ने पीछे कर दिया है। तो दे बिकॉज स्टूडेंट लाइक इट, वी कांट डू एनीथिंग। ये मैंने आप सब लोगों के लिए, सारे डीन, एचओडी, फैकल्टी, ये स्लाइड बहुत बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। आप देखें, ये भी उन्हीं प्रोफेसर्स की टीम ने डेवलप किया, अनएम्प्लॉयबिलिटी मॉडल। अगर हम इस स्लाइड को समझ गए तो हम अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं और प्लेसमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इन लोगों ने रिसर्च के बाद डेवलप किया है। ई फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इक्वल्स टू ए एटीट्यूड, इट इज मल्टीप्लाइड विद फैक्टर्स शोन हियर इन द ब्रैकेट। अल्फा इज द रिलेटिव वेट टू नॉलेज ओवर स्किल, ये 0 से 1 का रेंज है, एवरेज इन्होंने 0.6 मतलब 60% का लिया है। एस स्टैंड्स फॉर स्किल। मैं रिलेटिव वेट ऑफ नॉलेज की पहले थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। जैसे इस समय की रिक्वायरमेंट सिविल है, उसमें 60% नॉलेज है, 40% स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में अगर 60% 70% नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का और 30% उनको कैटिया और सॉलिड वर्क्स और तमाम सॉफ्टवेयर की नॉलेज स्किल चाहिए। कंप्यूटर में भी ऐसे है। तो ये जो हमारा एवरेज 60 to 70% वेरी करता है, इसको ये अल्फा एक जनरल टर्म लिया गया 60%, तो 0.6 रखा है। अब ये फार्मूले में देखिए, अगर ये ब्रैकेट के अंदर की चीज कितनी भी बड़ी हो और जो ए मल्टीप्लायर है जिसको कि हम एटीट्यूड कहते हैं, अगर ये कितनी भी बड़ी हो और एटीट्यूड कम है या नहीं है, तो जितना भी बड़ा फैक्टर होगा मल्टीप्लाई इससे होगा 0 से, तो सीधा 0 हो जाएगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी की इफेक्ट कहाँ है वो ही, इसलिए हायर द फर्स्ट थिंग तो इम्पोर्टेंट है, एटीट्यूड शुड बी वेरी गुड बिकॉज इट कैरीज मैक्सिमम मार्क्स, इट इज अ मल्टीप्लायर। Its attitude of a student is to be very strong and it should be in a good way. Definitely knowledge comes on the top. For that we have, but once it has been calculated, we have observed this particular result. You see, मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है, उसी से आप देखें। मैं 5 लड़कों का नाम है ABCDE लिख दिया मैंने। ये A स्टैंड कर रहा है कॉलम नंबर 1 में एटीट्यूड का, ये नॉलेज कर रहा है, एस स्किल कर रहा है, और 60% नॉलेज और 40% स्किल। ये जो कॉलम है 0.6K और 0.4S, ये बता रहा है कि 60% नॉलेज है और 40% स्किल है, और ये ई बता रहा है इस कॉलम में एम्प्लॉयबिलिटी है, और उसी को हमने परसेंटेज में लास्ट कॉलम दिख रहा है परसेंटेज। अब आप देखें, स्टूडेंट ए को आप ले लीजिए, बी लीजिए, सी पे आइए सीधा। सी में अगर एक स्टूडेंट है, उसका एटीट्यूड 50% आया, नॉलेज थोड़ा कम है, 28% आ रहा है, स्वाभाविक है, एटीट्यूड भी कम है। इन सभी देखिए, अब पूरे 5 लड़कों में सबसे कम एटीट्यूड हमने उसी को लिया है, 0.5 वाले को। नॉलेज भी कम है,
और इसका एम्प्लॉयबिलिटी जो परसेंटेज आएगा 16.5, 16.8 सबसे कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया उसका एटीट्यूड भी अच्छा होना था, नॉलेज भी अच्छा होना था, स्किल भी ठीक होना था, तब जाके अब आप देखें। दूसरा एक अलार्मिंग जो दिया है मैंने, वो ये दिया है कि यहाँ देखिए स्किल 82% है, 0.82 मैंने हाईलाइटर लगाया है रेड से। अगर स्किल बहुत ज्यादा है, नॉलेज भी ठीक है उसका, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एटीट्यूड इसका देखिए आप सबसे ज्यादा है 71 और 72 भी है, लेकिन आप यहाँ देखें एम्प्लॉयबिलिटी इसका सीधा 43.73 जा रहा है। आपके स्टेबल में सबसे हाईएस्ट उस बच्चे का एम्प्लॉयबिलिटी मैटर बन रहा है जिसका एटीट्यूड भी ठीक है, नॉलेज भी ठीक है, 50% जा रहा है, स्किल उसने अपने को इनहेंस कर लिया बहुत ज्यादा। So we have to inform the student also that please go through this, and this is the requirement of the tank. Now, employment, this is the satisfactory employment, the range I have decided. Then skill parameter, हम टीचर्स को ये जानना चाहिए कि आज के दिन हमारे जो पैरामीटर जो हम बात करते हैं ना स्किल की, वो ये है। We have to ensure that students are being skilled in IT knowledge. They should have good listening skill. These are the type of skill which we have to as a teacher implement in the classroom. Conceptual skill, written communication, body language, emotional intelligence, problem solving skill, interpersonal skill, and that is called relationship management. And innovative means out of box thinking. Other skill parameters, you can see proactive approach, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, सोशल स्किल, ये सबके स्किल होते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल होता है, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्लाइड फ्रॉम हियर, इट नीड्स सम स्किल। यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग टू योर स्टूडेंट्स, योर स्किल इज यूटिलाइज्ड देयर। आई एम टेकिंग क्लास, माय स्किल ऑफ टेकिंग द क्लास विल बी डिफरेंट। आईज फॉर डिटेल एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, डेराइविंग वैल्यूज फ्रॉम डाटा एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका रेजोल्यूशन स्किल आपके पास होना चाहिए। अब एटीट्यूड की बात किया था हमने, जहां पर सबसे ज्यादा उसका मल्टीप्लायर ही ये है। अब आप देखिए एटीट्यूड कोई किताब या कोई सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं है। फॉर दैट वी यूज्ड टू कंडक्ट द वर्कशॉप एंड वी हैव गॉट नाउ बुक्स आर देयर, बट वी कैन सी दीज फैक्टर्स बाय व्हिच वी कैन इंप्रूव द एटीट्यूड पैरामीटर। हियर पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग और उम्मीद से भरी दुनिया को देखना चाहिए। इंटीग्रिटी तो सबसे लॉयल है, मैंने पहले ही बोला, ये आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करता है। अगर यू आर इंटीग्रिटी टू योर एम्प्लॉयर, योर पर्सनालिटी विल बी, इट विल बी डिफरेंट। डिसिप्लिन, यस डेफिनेटली वन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग डिसिप्लिन विद इन द सिस्टम, विद इन योरसेल्फ एंड सी योर लिमिट्स। टीम स्पिरिट, आपके साथ 100 लोग हैं, 200, 500, 1000, आपकी टीम स्पिरिट में फील होना चाहिए। कोई अच्छा कर रहा है, कोई मीडियम है, सबके साथ आपकी सेम फीलिंग होनी चाहिए, कोई वीक भी हो सकता है। कंपेशन मीन्स होता है थोड़ा सा आदमी के, अगर कोई, मैं आपकी हिंदी मतलब बताऊं उसका, कि आपने किसी को देखा वो दिक्कत में है तो उसकी दिक्कत को आप फील करिए। जैसे बसों में चलते हैं जब, और कोई यंग लड़के बैठते हैं, हमने देखा है फॉर एग्जांपल वृद्ध महिला है तो उसके लिए वो खड़ा हो जाता है, या वृद्ध पुरुष है, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगले को खड़े हों तो लोग उठ जाते हैं, वो कंपेशन। हमारे यहाँ भी यही होनी चाहिए कि एजुकेशन में बच्चा अगर दिक्कत में है या कोई भी दिक्कत में है, हमको उसकी दिक्कत को देख के हमें उसका एक फीलिंग अंदर से होना चाहिए कि हाउ वी कैन हेल्प। एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। एम्पैथी का भी मतलब क्लियर होता है कि दूसरे के बारे में आप उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं कि वो फीलिंग्स अच्छी हैं, उन्होंने आपके एम्पैथी का एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूशन है, हमारे यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। हमारे पेरेंट्स मान लीजिए आते हैं, आपके यहाँ भी आते हैं, पेरेंट्स गए लो अटेंडेंस पे एचओडी के पास, एचओडी ने अच्छे से बात कर लिया, उनको नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। दे शुड शो कर्टसी टू द पेरेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर इंस्टीट्यूट एंड पेरेंट्स केयर। एंड एक गिलास पानी पिलाया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कराई, बच्चे के बारे में बताया और उनको धन्यवाद दिया। ये अच्छा व्यवहार एम्पैथी कहलाता है। और कंसर्न दूसरे के बारे में फील होना चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट एंड पैशन फॉर गुड केस, एंथुसियाज्म, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ये कुछ और पॉइंट्स हैं।
सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना है, लीडरशिप स्किल रहनी है, ये आदमी डेवलप करता है, इनिशिएटिव एंड ड्राइव होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर जाहिद की तरह ले लीजिए, कभी बेचारे वो मना नहीं करते, कितना भी प्रेशर होता है ऑलवेज ही से यस इट विल बी डन, ट्राई टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर जाहिद। मैं बिना हिचक बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ, ही हैज गॉट वेरी गुड क्वालिटी, ऑलवेज से यस। आप लोगों में, कुछ लोगों में इसको आगे लंबी जिंदगी में ये अडॉप्ट कर लेना बेहद आवश्यक है। इनिशिएटिव एंड ड्राइव, क्लीनिनेस, प्लेजेंटनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्लीजेंट, आपकी व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज हैप्पी। व्हाट इज द कॉज ऑफ वरी, so that the student should also feel to express their problem. Emotional intelligence, desire to learn, शिक्षा। हाँ, इस पे मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा। ये जो 21st डिजायर टू लर्न पे ये लाइन पर है, 21st सेंचुरी जो चल रही है, ये इसमें कोई इलिटरेट नहीं होगा। आपको मैं बड़ा क्लियर बता दूं, कोई भी इलिटरेट नहीं होगा इसमें। जिस लोग होंगे सिर्फ होंगे लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग। 3 लाइन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग का सेंचुरी है, फिर अनलर्निंग भी होगी इसमें, और फिर लास्ट होगा रीलर्निंग। मतलब हमने जो 21st सेंचुरी की रिक्वायर्ड स्किल है, चाहे हम कोई भी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको हमें लर्निंग करना है। बहुत से लोग होंगे लर्न नहीं करेंगे तो वो अनलर्निंग कैटेगरी में हो जाएंगे, वो इलिटरेट कहलाएंगे। चेंज हो गया नजरिया, पहले तो लोग ऐसा था, लोग हम लोग कहते थे नहीं साहब ऐसा, अब नहीं होगा। और रीलर्निंग में जो सीखी चीज को दोबारा करना है, इथिकल शुड बी देयर, इथिकल मैन शुड बी इथिकल एनफ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंडेड सेल्फनेस। हाउ टू इम्प्लीमेंट quality involvement? Quality involves everyone. It is not a cause of only AICT or UGC or college administration or university. It involves everyone, teacher, alumni, financial supporter. दूसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, सिस्टम ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव प्रोसेस टू हेल्प। हमेशा ये क्वालिटी के लिए हर आदमी काम करता है। स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इससे हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। The objectives were to be realized through the following specific deliverables. देखिए यहाँ पे फैकल्टी एंड स्टाफ डेवलपमेंट आपके यहाँ होता है, इनहेंसमेंट इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर आप करते हैं, ये सब चीजें उसको क्वालिटी को इनहेंस करती हैं। improving institutional governance and management and administrative practice which are conducive to academic autonomy, implement relevant institutional reform, improve teaching, training, learning facilities, providing academic support to weak students. So if we are doing all these things, definitely our human capital of the reintegrating part of the human capital will be definitely achieved. Higher capital, human capital will be visible, and definitely our objective will be attained. Here another slide says that increasing enrollment in postgraduate program, enhancing research consultancy activities, modernizing libraries and other means to access knowledge resources, enhancing research and development, developing research interest among degree PG students, sharing resources through collaborative arrangements. कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट का आप कोलैबोरेशन करते हैं, आपने IIT रुड़की से भी ढला हुआ है कोलैबोरेशन के बाद, वर्चुअल लैब इनका, वर्चुअल रिसर्च, so many you have got many MOUs, so you can utilize modernizing, expanding laboratories. So interdisciplinary center of excellence आपको establish करना चाहिए, जो कि लेटेस्ट एरिया पे फोकस करेगा। ये सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल का एक स्लाइड है, 2-3 स्लाइड में मैं टोटल इसको खत्म करूंगा। इसका एक पार्ट है मल्टीलिंगुइज्म का, उसको हम नेक्स्ट कभी भी लेक्चर हम जब वो देंगे डिजाइन थिंकिंग का, उसी में हम जोड़ेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, जब सिलेक्शन करने अब कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई आता है तो हमने एक सर्वे कराया था, उसका मैं चेयरमैन भी था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का 2019-20 में। तो उसमें AICT से जो अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट थे, जिनको टिक्यूब ने पैसा दिया था वो, और जिनको पैसा नहीं मिला था, तो उसमें ये देखा गया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सब पैसा देने से देश को क्या फायदा हुआ, इसमें सब शामिल थे। तो ये देखा गया सर्वे 4000 इंडस्ट्रीज का मैंने किया था, मेरे 2 मेंबर थे NIT कुरुक्षेत्र के और एक YMCA फरीदाबाद की। हमने ये पाया कि आप देखें सबसे बड़ा ये LO आ रहा है ना, कि सबसे ज्यादा ये कहते हैं अभी कि जो एम्प्लॉयर है वो NBA एक्रेडिटेशन भी खोजते हैं, उसके बाद वो ये देखते हैं कि साहब हमारे पास आप परसेंटेज देखें तो 29% जा रहा है LO में, रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। वो इस समय NIRF के पीछे परेशान है कि रैंकिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप LO हाईलाइटर देखें
तो ये लगभग काफी ज्यादा इसको डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये आके थोड़ा सा एनबीए की तरफ भी आ रहा है, लेकिन कम है। और लेकिन उसके बाद सेकेंड अप्रॉक्सीमेट दिस पास्ट रिलेशनशिप थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कंपनियां आपके यहाँ से जा रही हैं या एक्सपीरियंस विद प्रीवियस रिक्रूटर, ये सबसे बड़ा फिगर है। तो जो टीपीओ का काम ये है कि जितने आपके प्रीवियस रिक्रूटर हैं उनके साथ आप अपना लगातार संबंध बना के रखें, उनकी कंपनी, क्योंकि वो आपके रेगुलर विजिटर हो सकते हैं। ये कुछ इश्यूज हैं जो अलग अलग आईटी कंपनी में, आईटी और मैकेनिकल में इंडस्ट्रीज ने कहा था कि हम बेटर प्लेसमेंट के लिए हम ये प्रॉब्लम है, अगर किया जाता है तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट, उन्होंने अपना फीडबैक बताया था कि नए लड़के जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ हमें ये दिक्कतें होती हैं, ये चीजें अगर सुधर जाएं तो मैं काफी कुछ अच्छा वो मानते हैं। तो these were the few things, because other slides are about multilingualism, and it is something I'll tell you a brief. I have already told that 6 languages is already there by AICTE to implement, कि आपको जो टेक्निकल हो, मेडिकल हो, सब अपनी भाषा में, मातृभाषा में, अगर आपको स्टेट की लैंग्वेज उसमें पढ़ाया जाए हर लेवल पे, नॉट ओनली टेक्निकल, क्लास 9th तक, 12th तक, बीएससी। प्रॉब्लम इसमें बस एक आ रही है, वो मैं लास्ट स्लाइड से ही आपको मैं बताऊंगा। लास्ट प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि आपको उस मलयालम लड़का है, छोटा बच्चा, उसके लिए मैथमेटिक्स के टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स की किताबें आपको मलयालम में लिखनी है, फिजिक्स की लिखनी है, फिर उसको क्लास में कैसे पढ़ाएगा टीचर। हालांकि इसके लिए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आप हिंदी में बोलेंगे वो इंग्लिश या कन्नड़ में ट्रांसलेट करता चला जाएगा। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें जो एआई के सीईओ हैं उन्होंने एक जगह स्पीच दी थी, और स्पीच देने के बाद लोगों ने कहा आपकी अच्छी स्पीच थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी स्पीच ही नहीं थी, वो एआई की तरफ से मेरे, आपको लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैंने नहीं बोला, एआई ने मेरे वॉइस स्पीच को टेलीकास्ट कर दिया था। सोच लीजिए कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई कि एक आदमी है, वो आदमी की आवाज हमें लग रही है लेकिन है नहीं, वो एआई से कन्वर्टेड वॉइस है। ये लास्ट स्लाइड है जिसको मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, जो चैलेंजेस हैं, जो कंसर्न है पूरे देश में एनईपी को अटेंड करने में। पहला है कि नया करिकुलम अभी भी पूरे भारतवर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी ने, वे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बड़ी यूनिवर्सिटी आप ले लें, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नए करिकुलम को यूजी के साथ पीजी और तमाम कोर्सेज का स्टिल देयर आर मेनी इश्यूज विच इज बीइंग सॉर्टेड आउट। फिर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, नए करिकुलम में आपके टीचर्स की ट्रेनिंग भी एनईपी एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि आपने 21st सेंचुरी की आपने सब्जेक्ट की बात कर ली, डिजाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं आप, कि वो आपके बीटेक में, एमबीए में, सब में वो इलेक्टिव होना है, और आपको पता है डिजाइन थिंकिंग सबसे ज्यादा एमबीए के लिए यूजफुल है। तो उसकी ट्रेनिंग भी तो होनी है, जिसका स्पीकर नहीं मिल रहे हैं। आप डिजाइन थिंकिंग के बारे में अगर खोजिए तो आपको आईआईटी दिल्ली के एक राव साहब है, पीवीएम राव है, मैकेनिकल के प्रोफेसर है, वो पूरे भारतवर्ष में पहचाने जाते हैं कि ही टॉक्स। तो उसकी ट्रेनिंग सभी को होनी है। अगर हमें वो इलेक्टिव डालने के लिए बोल रही है एनईपी, तो हमें तो उसको पढ़ाना भी है। तीसरा पॉइंट देखिए, टू गेट एंड ट्रेन द टीचर हु कैन टीच स्टूडेंट इन देयर मदर लैंग्वेज। हमने आपको बताया ये वक्त कि कन्नड़, मलयालम, तमिल, जो भी लैंग्वेज है उनके 5वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए भी ट्रेन करना पड़ेगा। एंड तीसरा चौथा है टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड बुक्स, बिकॉज यू नीड बुक्स ऑल्सो। Huge number of books are available throughout the country. If you have to translate the CBSE physics, chemistry, math syllabus, NCERT syllabus into the respective languages, it all needs money also. Government has to put the expenditure in the CBSE. Because of that only a huge amount of budget have been sanctioned. Now similar 300 tasks are to be completed. अब आप देखिए 2023 आधा आ गया, 300 टास्क और हैं जो अभी कंप्लीट होने हैं, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2028 तक ये एनईपी शायद पूरा हो सके। टास्क तो ये है बड़ा है, लेकिन ये लोग जनरल परसेप्शन है कि 2028 या 29 तक एनईपी इंप्लीमेंट होने की स्थिति में दिख सकती है। लास्ट पॉइंट है, by 2022 policies of NEP to made available and implemented in academies throughout the country, but it is in progress. Already we are working on that. Everyone is working, introduce the different aspects, but we need to ensure that early implementation of all the points mentioned in the national education policy, if it can be done at earliest,
it will be better for the country and for our students and for faculty. All the stakeholders will be definitely benefited from that. So this was all about new education policy, and in summary, it is based basically on human capital reintegration, because human capital is the major force which NEP feels, and as per that terminology, Government of India have allotted huge amount of budget by incorporating amount in the fourth column, fourth pillar, and that is there, which is hopefully making the things changeable also, and it is better for the country. So thank you very much, and I request all the faculty members to listen all, and any query there, I am available here, and query I can respond immediately. Yes, please. Dr. Jahid, any query from my side, from that so that I can reply? सर एक पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोनों में सर? फिर से बताएं। इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस सर, एक पॉइंट था ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए मैं आपको बताऊं। देखिए, इमोशनल और इंटेलिजेंस में डिफरेंस मैं बताऊं, मैं एग्जांपल से समझा रहा। इफ ए स्टूडेंट कम्स टू यू and he is in some trouble, he cannot, for example, he has got some issue with the fee deposit. As a teacher, you will counsel him कि we have got our limitation, that we have to teach you so many, you have to be emotionally connected with the student first, and that too intelligence level of your own personality has to be utilized immediately. Unless until you are not emotionally and intelligently connected with the student for a small problem. I've taken an example of fees only. For example, he comes to you for solving of a difficulty in your any problem of mechanical. There are two ways. I will discuss with intelligentsia use of my own wisdom, and I will be attached with emotionally. यस बेटा, मैं तुमको ये प्रॉब्लम बिल्कुल बताऊंगा, पहले चिंता नहीं करो। डॉक्टर्स इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जो अच्छे डॉक्टर होंगे, आपने देखा होगा, जो फिजिशियन होते हैं, वो आधे एक रामचंद्र RKC मिश्रा जी हुआ करते थे वहाँ दाऊदपुर में, उनके साथ जाइए तो इतनी अच्छी बात करते थे, 50% बीमारी वहीं खत्म हो जाती थी। सो उस तरह की इंटेलिजेंस और जो इमोशनल एस्पेक्ट है, वो इसलिए टीचरों के लिए आवश्यक है कि वो टीचर को हमने उधर, आप स्लाइड इसको क्या करिएगा, स्लाइड को फिर से आप सबको ना सर्कुलेट करिएगा। वी हैव टू डेवलप आवर ओन इंटेलिजेंस लेवल एंड आवर ओन इंटेलेक्चुअल। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टीचर जरूर आते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहिए तो 7 तरह की है। तो हमें उसका विजडम और सब यूज करके हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स में शामिल होकर उसकी सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, और क्लियरिटी है, एम्पैथी और कंपैशन। मैंने आपको 2 वर्ड अंदर बताया ना, एक कंपैशन बताया था और एक एम्पैथी बताई थी। उसमें हमने पेरेंट्स का एक रेफरेंस किया था। तो इन जनरल ये उस सब चीजों से जुड़ी चीजें हैं जिसके तहत हम अपने स्तर से बात करके बच्चों से जो भी बेस्ट हो सकता है। बच्चे भी आज के दिन 21st सेंचुरी के ये इंटरनेट जनरेशन के स्टूडेंट हैं। दे आर फॉर यू कैन से इंटेलिजेंटली वेरी स्ट्रांग। तो दैट इज देयर। आने वाला समय इसी पे चलना है। तो दिस इज ऑल। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू सेक्रेटरी साहब and MD साहब, all the head of department for giving your time, and also I enjoy learning and I used to give the lecture. I will take design thinking, and probably that I will tune up with Dr. Jahid, and that is very new topic. Design thinking, it is very interesting also. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this session such a resounding success. First of all, I would like to propose vote of thanks to our speaker of the session, Professor S.P. Pandey sir, who has spared time from his busiest schedule and sharing his expertise of national education policy with us. Thank you, sir, for this much needed thought-provoking address.
To continue, I would like to express profound gratitude to our respected Chairman Sir, MD Sir, and all the dignitaries for their presence and moral support. And many thanks to all who are present here in the seminar hall and those who are connected with us online for their patience and being such a wonderful audience. I hope we will be organizing such informative and interesting sessions in upcoming days as well. Thank you. Thanks a lot.